So very good afternoon to all. Today we are going to discuss the topic that is unwed mother, and this topic is from unit number 7 of OBG, right? So let's start with it. This topic you might have studied in GNM third year also, when you were in your diploma program, when you were studying in your diploma program, right? So we'll have a review on this topic. So let's start with it, okay? So, first of all comes the definition of unwed mother. So, unwed mother is the lady. Unwed mother is the lady who has become pregnant without legal justification of physical intimacy between man and woman. So, जो unwed mother होती है, right? So, हम किसे unwed mother बोलते हैं? जो कि pregnant हुई है, ठीक है? Without any legal justification. इसके पास कोई भी legal justification नहीं है to have intercourse with a man, right? So in the traditional societies like India, the physical relationship before marriage or becoming mother before marriage is considered as a sin. तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है जैसे कि इंडिया की है, ट्रेडिशनल कल्चर है हमारा, तो उसमें अगर कोई विदाउट मैरिज अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सिन, उसे एंटी सोशल जो है वो कंसिडर कर लिया जाता है. So therefore the result of such women in the traditional societies is very bad, right? Then next we are going to discuss the causes of unwed mother. Like what are the various causes which lead a woman to become a unwed mother? So number one comes poverty, right? So the foundation of unwed mother lies somewhere in the poverty. It is well known that very unfortunate parents, due to their poverty, sell their daughters. Okay, as you might have seen in some web series or in some movie pictures, right? और इन सब सीरियल्स यू हैव सीन कि जो गरीब पेरेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको ना चाहते हुए भी कई बार अपनी वो बेटियों को बेच देती हैं बिकॉज दे थिंक दैट देयर डॉटर्स आर अ टाइप ऑफ बर्डन ऑन देम एंड एज दे आर पुअर, सो वो अपने डॉटर्स को जो है वो सेल कर देते हैं, राइट? सो दैट कैन बी वन रीजन, राइट? सो मैनी ऑफ दीज गर्ल्स एंड रिजल्ट इज अनवेड मदर. ठीक है, शादी तो उनसे कोई करता नहीं है बट वो प्रेग्नेंट हो जाती है. So next comes prostitution. After poverty, next जो cause है that is prostitution. So prostitute is an individual who for sake of some reward engage in illegal sexual act with various individual either of same or opposite sex. ठीक है. So prostitute एक ऐसी individual होती है जो कि like कुछ you know just for the sake of some bugs or some money they engage themselves in illegal sexual activity. जो illegal sexual activities में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, विद लाइक विद वेरियस इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों के साथ जो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स बना लेती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम रिवॉर्ड और मनी. इधर दैट वो सेम पर्सन के सेम सेक्स वाले पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप बना लेते हैं और ऑपोजिट सेक्स वालों के साथ भी बना लेते हैं, ठीक है. द ट्रेजेडी ऑफ दिस प्रोस्टिट्यूट इज ऑल्सो बीइंग अनवेड मदर. सो ये जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं दे मे ऑल्सो एंड अप in becoming unwed mothers, right? So causes में अभी तक we have discussed about poverty, second we have discussed about prostitution, then next comes teenage mistakes, ठीक है. So many teenage girls due to inefficient decision making make a mistake that make them an unfortunate mother, unwed mother, right? So teenage में you know the teenagers don't have the understanding like what is wrong and what is right, और उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है उस एज में, राइट? तो दे मे बी इनएफिशिएंट इन टेकिंग और मेकिंग राइट डिसीजंस, राइट? एंड दे मे मेक अ मिस्टेक दैट मेक देम एन अनफॉर्चुनेट अनवेड मदर्स, राइट? Then next comes in improper sex education. So due to lack of improper sex education among teenagers and adolescents, the unwanted pregnancy is an emerging issue, right? So क्योंकि in our society like India, ठीक है, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को थोड़ा सा लाइक यू नो अभी भी एक वो माना जाता है चैप्टर ऑफ प्राइवेसी, कि अगर कोई है, अगर कोई मेल है उसके सामने डिस्कस नहीं करना है इसके बारे में, या बहुत सारे लोग बैठे हैं तो उसके सामने इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली लैक ऑफ इम्प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, ठीक है, अमंग टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट. और उनको इतनी समझ होती नहीं है और उनके पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होती नहीं है एंड दे एंड अप इन बिकमिंग अनवेड मदर्स. देन नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, राइट? So as this can be a main reason of unwed mothers, क्योंकि contraceptive failure भी होने हो जाता है कई बार, ठीक है.
So if sexual relationship before marriage is made but used contraceptives does not work, them it result in an unwanted pregnancy, making the lady an unwed mother. ठीक है, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से पहले मतलब शादी से पहले अगर किसी ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हैं एंड दे हैव टेकन द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बट वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के बाद भी दैट पर्टिकुलर गर्ल हैज बिकेम pregnant, right? So that will come under contraceptive failure. So this may occur, right? This may lead to unwed mothers. Then next आता है आपका इसमें consequences of being unwed mother. So what all can be the consequences of being unwed mother? क्या क्या results हो सकते हैं इसके? So being mother before marriage, a mother has to face great consequences like unwed mother is not socially acceptable in our traditional society, right? So if a woman is becoming pregnant before marriage, right? So she has to face great consequences, right? The people will throw tantrums on them, right? Because they will consider her as an anti-social element, right? Because socially acceptable नहीं होता ये हमारी traditional societies में. So that can be the one consequence, और जिसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकली सफर करना पड़ता है उस पर्टिकुलर लेडी को. देन नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फैमिली. ये तो कॉन्सिक्वेंस था मदर के लिए. देन कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं फैमिली पे, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा. द डार्कनेस ऑफ बीइंग अनवेड मदर नॉट ओनली रिमेन टू मदर बट हर फैमिली आल्सो हैज टू फेस इट. वन सेकेंड. सो फैमिली को भी फेस करना पड़ता है ना, इतना मतलब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं. सो द सोसाइटी बाइकआउट द फैमिली ऑफ अनवेड मदर. जो सोसाइटी है वो पूरी फैमिली को ही बाइकआउट कर देती है, उनके साथ अपने सारे रिलेशनशिप खत्म कर देती है. सो द फैमिली लूज देयर रिलेशनशिप विद द सोसाइटी व्हिच लीड्स टू आइसोलेशन. तो अगर बिकॉज मैन इज अ सोशल बीइंग, सोशल एनिमल जिसे आप बोलते हैं, है ना. तो अगर सोसाइटी ही अपने आप को बाइकआउट कर लेगी उस पर्टिकुलर फैमिली से, राइट, तो जो फैमिली होगी वो वाली अनवेड मदर की जो फैमिली होगी वो आइसोलेशन में आ जाएगी एक तरह से, एंड हेंस रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑन द फैमिली. तो इट विल लीड टू साइकोलॉजिकल ट्रॉमा टू द मदर आल्सो, टू द family of the mother also, right? Then economic problems. So as unwed mothers lack support from family and society, therefore she faces great economic problem. क्योंकि क्योंकि जो एक अनवेड मदर है, राइट, उसको लाइक फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी फैमिली भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही. तो she'll face financial crisis also. So economical problems जो है, economic problems उसको face करना पड़ेगा. Then next comes health problems. So both mother and child are at great risk of serious health problems. This may be due to lack of support, emotional or nutritional, right? Both to mother and the baby. क्योंकि लाइक हेल्थ प्रॉब्लम तो हो सकती है. एक तो हो सकता है कि एडोलेसेंट एज में कंसीव कर लिया हो. सो दैट कैन बी द मेन वन हेल्थ प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो सकती है, मतलब उसकी एडोलेसेंट एज की वजह से, राइट. एंड बोथ मदर एंड चाइल्ड जो होंगे दे बोथ विल बी एट द high risk of serious health problems, right? Am I audible? Sorry. This may be due to lack of support. ठीक है, लैक ऑफ सपोर्ट क्यों? फैमिली की सपोर्ट नहीं है, सोसाइटी की सपोर्ट नहीं है, तो इमोशनल सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है उनके पास. ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो उनके पास रहेगा ही. तो विच विल आल्सो हैम्पर द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी. देन न्यूट्रिशनल भी उनके पास सपोर्ट नहीं है, मतलब न्यूट्रिशनल उनके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो दे विल बी नो वन टू लुक आफ्टर देम एज द मदर इज अनवेड, राइट. तो उनको केयर करने के लिए कोई नहीं होगा, और उनको पता भी नहीं होगा लाइक व्हाट ऑल थिंग्स दे नीड टू टेक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ऑल, राइट. तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हैं, तो उसकी वजह से और हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है बोथ मदर एंड बेबी को. देन अनसेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस व्हिच आर यूजुअली कंडक्टेड एट अनहाइजीनिक प्लेसेस टू हाइड अनवांटेड प्रेगनेंसी. क्योंकि अनवेड मदर है तो वो अपनी डिलीवरी भी कहाँ जाके करवाएगी? जहाँ पे किसी को पता ना लग सके, है ना. तो वो जो जगहें होती हैं ऐसी वाली जहाँ पे ऐसे ही डिलीवरीज की जाती हैं, ठीक है, अनवेड मदर्स की, और तो वो अनहाइजीनिक प्लेसेस पे ही होगी ऑब्वियसली. तो प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक्स तो वो यूज करेंगे नहीं डिलीवरी के लिए, so, जिसकी वजह से उनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, राइट.
Is it clear to everyone? Then next is support system available to unwed mother, right? So support system to unwed mother is more available in Western society than traditional one. तो सपोर्ट सिस्टम जो है यहाँ का इंडिया जैसी कंट्री में तो सपोर्ट सिस्टम होता नहीं, बिकॉज फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, सोसाइटी तो वैसे बाइकआउट कर देती है, राइट? तो सपोर्ट सिस्टम बेसिकली ट्रेडिशनल सोसाइटीज में नहीं होता है, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज में एक्सेप्टेबल है ये, तो वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम जो होगा वो मिलता है अनबर्ड मदर्स को. For each few decades, the government provides free food, free medical support system, jobs to earn income, proper education facilities to unwed mothers child, right? Then legal rights of unwed mothers. ठीक है, क्या क्या एक unwed mother के legal rights जो है उनको दिए गए हैं. Number one is established paternity, right? Established paternity में आपका आ जाता है जैसे कि unwed mother has a right to raise the case in the court to establish paternity for her child against men who she is expected that he is the father of her child, right? So जो अनवेड मदर है उनके पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जाके जो है वो केस रेज कर सकती हैं, ठीक है, टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी फॉर हर चाइल्ड, ठीक है, जिसको मतलब अगर वो केस कर सकती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन पे जिसको कि वो उसको लगता है कि वो उसके बच्चे के होने वाले उसके बेबी के फादर हैं, ठीक है, तो उस पे पैटर्निटी एस्टैब्लिश करने के लिए केस कर सकती हैं, राइट? देन नेक्स्ट आता है आपका वंस पैटर्निटी इज एस्टैब्लिश्ड द मदर कैन डिमांड द सपोर्ट फ्रॉम फादर टू रेज हर चाइल्ड. तो एक बार जब कंफर्म हो जाएगा कि यस शी इज प्रेग्नेंट, like and he is the father of this particular woman, this sorry and he is the father of this particular child, right? तो उससे क्या होगा, जो मदर होगी, ठीक है, उसको एक सपोर्ट जो है वो सपोर्ट के लिए वो डिमांड कर सकती है कि अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए उसको इसके फादर की सपोर्ट की जो है वो जरूरत है. सो द सपोर्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो मनी के लिए भी बोल सकती हैं फादर से, राइट? और इन सम अदर फॉर्म, राइट? तो दिस ऑल कैन बी डन. देन नेक्स्ट आता है कस्टडी ऑफ द चाइल्ड की कस्टडी जो है वो कैसे होगा. सो इवन इफ पैटर्निटी इज एस्टैब्लिश्ड स्टिल हैज द राइट टू अंडरटेक कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इफ शी वांटेड, राइट? अगर उसने साबित कर दिया कोर्ट में लाइक कि ही इज द फादर ऑफ हर चाइल्ड, राइट? तो उससे क्या है, जो मदर है, मदर के पास पूरा राइट है कि बच्चे की कस्टडी जो है वो मदर के पास ही रहेगी, राइट? सो ये सभी लीगल राइट्स में ही आते हैं अनवेड मदर के. देन नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, राइट? तो आप कैसे अनवेड मदर्स के केसेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं. सो नंबर वन पे जो आएगा दैट इज पीयर एजुकेशन. पीयर एजुकेशन का मतलब है जो अपना फ्रेंड ग्रुप है, उस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन सबको जो है वो एडुकेट करना है हमने रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन हमने उनको प्रोवाइड करना है. सो पीयर एजुकेशन शुड बी इम्प्लांटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू दोज हु आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, ठीक है. तो पीयर एजुकेशन हम उनको देंगे जो कि स्कूल नहीं जा सकते हैं. एडुकेटिंग रिगार्डिंग सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी प्रोवाइडेड टू देम बाय फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ पीयर्स, ठीक है. पीयर हम वैसे बोल देते हैं ना, पीयर ग्रुप जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है अपना. तो वैसे ही जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, घरों पे ही हैं या काम करते हैं, तो उनको इकट्ठा करके उनके ग्रुप्स बना के हम उनको सेक्स एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इन दैट वे वी कैन प्रिवेंट द केसेस ऑफ अनवेड मदर्स. देन सेक्स एजुकेशन में आपका जाता है जैसे कि वेल डिजाइंड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू यंग पीपल सो दैट दे कैन एंगेज इन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है. तो जो भी यंग पॉपुलेशन है हमारी, उनको हमने एक वेल प्लान्ड एंड वेल डिजाइन सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है सो दैट वो अपने आप को एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है. देन है सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक किस लिए होती है, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है. सॉरी सॉरी. So government has made easy access to contraceptives, therefore should take benefit of it and must take necessary step to prevent the occurrence of on unwed mother. तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए जो एक्सेस है वो बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया है. आपने देखा होगा जो पीएचसी सीएचसी होते हैं वहां पे कॉर्नर में एक बॉक्स जो है पड़ा रहता है जिसमें निरोध के पैकेट्स होते हैं. सो वन कैन कम एंड टेक द निरोध फ्रॉम देयर
लाइक एंड विदाउट लेटिंग विद लाइक किसी को बताए बिना वो वहां से ले सकते हैं। तो एक इजी एक्सेस जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव का करा है गवर्नमेंट ने, तो सबको यूज करना चाहिए ये। देन abolition of prostitution. So prostitution mostly result in unwed mothers. So in order to prevent this, the prostitution should be banned or prostitutes should be informed about the use of contraceptive. ठीक है, या तो prostitution बिल्कुल ही बैन हो जाना चाहिए कंट्री में, या फिर जो prostitution है उनको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए जो है वो एडवाइस किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो अनमेड मदर्स होती हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, राइट। देन नेक्स्ट आता है इसमें आपका रोल ऑफ नर्स। सो व्हाट एक्चुअली इज द रोल ऑफ नर्स इन दिस, राइट। सो एज वी ऑल नो, एज अ एजुकेटर जो नर्स है, ठीक है, वो एज अ एजुकेटर यहाँ पे अपना जो रोल है वो प्ले करेंगी, ठीक है। सो द नर्स शुड प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग सेक्स एजुकेशन टू यंगस्टर टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ अनवेड मदर, ठीक है। जो भी यंग पॉपुलेशन है उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, है ना, इस मेन रोल किसका है, नर्सेज का। सो द नर्सेज कैन लाइक यू नो कैन promote or you can say can provide sex education to youngsters to prevent occurrence of unwed mother. So nurse can provide knowledge to youngster about the evil effect of being unwed mother, ठीक है। और वो जो नर्स है साथ सेक्स एजुकेशन के साथ ही साथ वो जो यंगस्टर्स होंगे उनको ये भी बताएगी कि बीइंग अनवेड मदर उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो जो नर्स हैं वो बीइंग अ एजुकेटर जो है वो बता सकती हैं। Then as an educator, ठीक है, so the nurse can act as an advocate over here, right? So she can advocate the rights of unwed mother and can protect her from further exploitation, ठीक है। Like if some woman has become pregnant, who is not married, right? But she has became pregnant. So in that case, the nurse has the the nurse can play the role of advocate by letting her know the rights of unwed mother। क्या क्या unwed mother के rights हैं, जैसे कि वो पेटर्निटी एस्टेब्लिश कर सकती हैं, कोर्ट में जाके केस रेज कर सकती हैं, और अगर वो केस में ये प्रूव कर देती है लाइक ही दिस एक्स एंड वाई दिस एक्स वाई जेड इज द फादर ऑफ हर हर वुड बी चाइल्ड, तो उससे क्या है वो उससे आप बोल सकते हो कि बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकती है, जिससे कि वो अपने बच्चे को रेस करेगी फ्यूचर में, ठीक है, लाइक जिसमें मनी के लिए बोल सकती है ना। तो वो सब राइट्स बताने जो है वो नर्स का रोल है यहाँ पे प्ले होता है। एंड शी मस्ट इन्फॉर्म द मदर अबाउट हर लीगल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू देम सो दैट मदर कैन टेक बेनिफिट ऑफ देम। तो जितने भी लीगल राइट्स जो हैं जो भी हमने डिस्कस करे हैं ऊपर वाले पेज पे, ठीक है, तो वो लीगल राइट्स को जो है वो डिस्कस करेंगी विद द अनवेड मदर, और उनको इन्फॉर्म करेंगी कि क्या क्या उनके लीगल राइट्स हैं, ठीक है, और कैसे वो उनसे बेनिफिट ले सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एज अ हेल्पर। So as a helper also, the nurse can play a vital role, like she can help the mother to raise her child in the society, ठीक है। वो मदर की हेल्प कर सकती हैं, अनवड मदर की हेल्प कर सकती है in raising her child. Then nurse must provide free services to the mothers which are provided by government agencies to help them, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि अनबर्ड मदर्स के लिए काम करती हैं एजेंसीज। तो वो जो एजेंसीज हैं वो जो फ्री सर्विसेज जो है वो अनबर्ड मदर उनके बच्चों को जो है वो फ्री सप्लाई जो देती हैं, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो सारी सर्विसेज जो है वो उस पर्टिकुलर अनबर्ड मदर और उसके बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है as a researcher. So as a researcher, she should make research in the best preventive measure to avoid the occurrence of unwed mother. So being a researcher, जो nurse है, she should make out some solutions, or she should find out some solutions जिससे कि ये जो unwed mothers के जो occurrences हैं इनको कम कर सके, ठीक है। तो ऐसे solutions कहाँ से मिलेंगे? By doing research in different areas, ठीक है। So these all are the role of nurse, right? So this is a like small topic, unwed mothers, but it is important whenever it comes it is an important topic, ठीक है, if it comes in your examination,
तो 5 मार्क्स का नोट लिखने के लिए आता है ज्यादातर, राइट, इसके ऊपर. So here I'm going to summarize the topic. First of all, we have discussed about the definition of unwed mothers, in which I have explained you that if a woman who is not married but pregnant without legal justification of this physical intimacy between man and woman, ठीक है, so that mother will be called as a unwed mother. ठीक है. Then we have discussed about the causes of unwed mother. So causes में we have discussed about the poverty. Poverty was the cause. Prostitution was the cause. Then teenage mistakes is the another cause. Like then next is improper sex education is the another cause. Then contraceptive failure is also one another cause of unwed mother. Then after this we have discussed about the consequences of being unwed mother. ठीक है, इसमें हमने बताया था कि एक एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है मदर को, राइट. एंड जो सोसाइटी है वो बॉयकॉट कर देती है, मदर को भी कर देती है, जिससे मदर को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, और उसकी फैमिली को भी बॉयकॉट कर देती है, जिससे कि फैमिली भी एक आइसोलेशन में चले जाती है, जिसकी वजह से फैमिली को भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है. ठीक है. बाकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स तो उसको आएंगी ही आएंगी मदर को, क्योंकि फैमिली भी साथ नहीं दे रही है, सोसाइटी भी साथ नहीं दे रही है, और फाइनेंशियल क्राइसिस तो उसको फिर होगा ही, राइट. देन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है मदर को, ठीक है, क्योंकि अनबेड मदर है, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर एंड हर बेबी, है ना. तो उससे क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो मदर को हो सकती है, क्योंकि उसको नहीं पता होगा हाउ टू लुक आफ्टर हर इन प्रेगनेंसी. Sorry. Then after this we have discussed about the legal rights of unwed mothers. ठीक है, like she can go to the court and raise a case to establish paternity, है ना. Then once the paternity is claimed or established, ठीक है, the mother can demand the support from father to raise her child, right. The support can be in the form of money or in some other form, ठीक है, जो भी उसको ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग. देन कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड है अभी भी जिसके पास रहेगी, अगर पैटर्निटी एस्टैब्लिश हो भी गई तो कस्टडी जो है वो मदर के पास रह सकती है, दैट इज आल्सो हर राइट, राइट. ऐसा नहीं कि पैटर्निटी एस्टैब्लिश हो जाएगी तो जो बेबी है उसका वो फादर के साथ जाएगा, ठीक है. मदर हैज अ राइट टू कीप द बेबी विद हरसेल्फ. देन प्रिवेंशन हमने इसका पढ़ा कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंट हम इसको कर सकते हैं पीयर एजुकेशन से, लाइक दोज हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, किड्स दोज हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, उनका हम पीयर ग्रुप बना के उनको सेक्स एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आ गया सेक्स एजुकेशन, ठीक है, तो वेल डिजाइन वेल इम्प्लीमेंटेड सेक्स एजुकेशन कैन बी गिवन टू द यंगस्टर्स, ठीक है. देन कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाईज का जो ईज है अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन और अच्छा हम उसको फिर जो है वो और कर सकते हैं और अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, मेनली तो यही है. देन प्रोस्टिट्यूशन जो है दैट इज द मेन रीजन ऑफ दिस अनवेड मदर्स. तो इस केस में व्हाट वी कैन डू इज we can ban prostitution, or even we can give sex education to prostitutes to use contraceptives um, while physical, like during physical intimacy, है ना. Then role of nurse we have discussed, like she can act as an educator, she can act as an advocator, right. Then she can act as a helper, and then last she can act as a researcher, जिससे कि वो she will find out solutions like how to minimize the occurrences of unwed mothers, right. So I hope this topic is clear to all of you, and if anyone is having any doubt, please let me know, right. And thank you so much for your attention. Thank you.